نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 29 میں. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور برکت سے ہمارا جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو چکا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل اور فاعل کا فعل میں فاعل کا استعمال سیکھا. ہم نے فاعل ظاہر اور فاعل مستتر کو دیکھا. ہم نے سیکھا کہ فعل جملہ فعلیہ میں جو اس کے دو مین کمپوننٹس ہیں فعل اور فاعل، اس کے بغیر جملہ فعلیہ انکمپلیٹ ہے. فعل ماضی کی گردان دیکھیے، واحد مذکر غائب کے پہلے دیکھیے فاعل لام روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس، تو مذکر غائب فعلا فعلا فعلو، مؤنث غائب فعلت فعلتا فعلنا. یہ 6 صیغے غائب کے ہیں. ان میں حالت رفع کی غائب کی ضمیر جو ہے بطور فاعل ان میں موجود ہے. گردان کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب فعلا، اور گردان کا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب فعلت. یہ جب بھی جملہ فعلیہ میں آئیں گے ان کے بعد آپ کو فاعل ظاہر ملے گا. باقی گردان کے 12 صیغوں میں فاعل مستتر ہے. مذکر حاضر دیکھیے فعلتا فعلتما فعلتم، مؤنث حاضر فعلتی فعلتما فعلتنا. متکلم مذکر مؤنث واحد دیکھیے فعلتو، جمع متکلم فعلنا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال ہے. تو تھوڑا سا ہم پہلے پچھلا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اس کے مین 2 کمپوننٹس ہیں فعل اور فاعل. فاعل ہمیشہ آپ کو حالت رفع میں ملے گا، چاہے وہ ضمیر ہو تو وہ بھی حالت رفع کی ضمیر ہوگی، اگر وہ اسم ظاہر ہے تو بھی وہ حالت رفع میں ہوگا. فاعل ظاہر میں آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے ملے گا؟ آپ کو وہ اسم علم ہو سکتا ہے، معرف بالنام اسم یا نکرہ اسم مل سکتا ہے فاعل بن کر، جملہ مل سکتا ہے، اس کو ہم لیٹر آن اسٹڈی کریں گے. اسم اشارہ فاعل بن کر مل سکتا ہے، مرکبات مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، یہ سب ہمیں فاعل بن کر مل سکتے ہیں. مفعول آبجیکٹ، اب یہ کیا ہے اس کو سمجھیے. ایسا یعنی جس اسم پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. ایسا اسم جس پر فعل واقع ہو مفعول کہلاتا ہے. اب کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان افعال جو ہیں وہ جب فعل واقع ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس فعل کو واقع ہونے کے لیے کوئی ایک آبجیکٹ چاہیے جس پر وہ فعل اپنا افیکٹ دے، اپنا اثر ڈالے، اسے ہم مفعول کہتے ہیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں فعل مفعول کو تو ہمیں جملہ فعلیہ میں مفعول کیسے ملے گا؟ سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ مفعول آپ کو ہمیشہ حالت نصب میں ملے گا. مفعول جب اسم ظاہر ہوگا تو آپ کو کن کن شکلوں میں ملے گا؟ اسم علم، معرف بالنام اسم یا نکرہ اسم، جملہ اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، اسم اشارہ، مرکبات میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، یہ آپ کو مفعول بن کر مل سکتے ہیں. ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ فاعل کے بغیر کسی فعل کا تصور ممکن نہیں، البتہ مفعول کا استعمال ہر فعل کے لیے ضروری بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم مفعول ہے یہ جب ملے گا جملے میں
کہ اسم علم معرف باللام اسم یا نکرہ اسم اگر مفعول بنیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے، جیسے حامدن، الولدا، ولدن۔ اسم اشارہ اگر مفعول بنے تو حالت نصب میں ہوگا، مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب نظر نہیں آئے۔ مرکبات اگر مفعول بنیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے۔ مرکبات کا اعراب ہم ان کے لیڈر سے دیکھیں گے۔ الرجل الصالح، الرجل حالت نصب میں ہے، موصوف ہے، اور اس کی صفت اس کو اس کے چاروں اسپیکٹس میں فالو کر رہی ہے، تو یہ مرکب توصیفی یہاں پہ حالت نصب میں ہے۔ امام المسجدی، مسجد کا امام، یہاں دیکھیں مضاف حالت نصب میں ہے، تو ہم مرکب توصیفی اضافی کا جو اعراب ہے وہ اس کے مضاف سے دیکھیں گے۔ حاضل مدرسہ، مرکب اشاری اور اس کے مشارون الیہ سے ہم اس کا اعراب دیکھیں گے جو کہ اس وقت حالت نصب میں ہے۔ دیکھیے فعل اور جملے میں، جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کے استعمال کی وجہ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ فعل لازم انٹرانزٹیو ورب، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے بات مکمل کر دے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الحق حالت رفع میں اس کا فاعل ہے، واو عاطفہ ہے، زہق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الباطل حالت رفع میں اس کا فاعل ہے۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے، فاعل نے جو فعل پرفارم ہوا ہے اس کا اثر فاعل پر ہی ہے، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب، یہ کیا ہے؟ وہ فعل جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کا لانا ضروری ہو فعل متعدی کہلاتا ہے۔ اچھا، متعدی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدی بیماریاں، ٹھیک ہے، تو جو کانٹیجیس ہوتی ہیں، جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو جو یہ ٹرانزٹیو ورب ہے، ٹرانزٹ سے نکلا ہے یہ اصل میں یہ لفظ ٹرانزٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگزامپل دیکھیں، صرف اللہ قلوبہم، صرفا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، قلوبہم مرکب اضافی ہے، تو ہم اس کے مضاف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالت نصب میں ہے، تو یہ یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ اچھا، اب ہم ان کو تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں۔ مرکبہ فعل لازم اور فعل متعدی، اب دیکھیے اگر میں کہتی ہوں ہنسنا، رونا، میں آیا، میں گئی، یا میں آئی، تو یہ اب ایسے افعال ہیں جس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، جو فعل ہے اس کا اثر فاعل پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہنسا، تو جو وہ ہنسا فاعل، اس پر ہی فعل کا اثر ہے، ٹھیک ہے، رونا، وہ رویا، ٹھیک ہے، تو وہ فاعل پر ہی اس فعل کا اثر آ رہا ہے، افیکٹ آ رہا ہے۔ اب جو متعدی ہوتے ہیں نا، ان میں جو ہے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں حامد نے محمود کو مارا، ٹھیک ہے، تو اچھا اس کو ہم آگے مزید دیکھتے ہیں۔ دیکھیے فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا، جلسا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا، اب اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بیٹھنے کا عمل صرف فاعل نے کیا ہے، اور بیٹھا، بیٹھنا فعل، ٹھیک ہے،
جو فیل परफॉर्म हुआ है वो फाइल पर ही हुआ है, यानी फाइल इज वर्किंग हिमसेल्फ, और इसका इफेक्ट किसी और पर नहीं आ रहा उसके बैठने का, वो उस फेल फाइल पर ही है, उस फेल का असर, काम का असर फाइल पर होगा। अब यहाँ देखिए, वो निकला, वो गया, वो आया। अब इसमें देखिए कि सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, फाइल खुद ही इन कामों को कर रहा है और उसके खुद पर ही इनका इफेक्ट आ रहा है, इसमें कहीं सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा फेल लाजिम कहलाता है जिसमें काम का असर खुद फाइल पर बस होता है। फेल मुतअद्दी, बात मुकम्मल करने के लिए मफूल जरूरी है। ज़राबा हामिदुन ज़ैदन। अब ज़राबा वाद राबा रूट लेटर फाला के वजन पर मारना। अब यहाँ फाइल कौन है? हामिदुन हालत रफा में है, और फेल क्या है? मारना, ज़राबा मारा। अब देखिए कि ये जो मारना है, मारा, हामिद ने मारा। अभी अगर आप जाइदन को बोल रहे हैं हामिद ने मारा, तो अब हम ये सोचेंगे कि इस फेल का असर किस पर हुआ है? किसी पर हुआ है, किसी को तो मारा है उसने। तो देखिए, उसने मारा है जैद को। ज़राबा हामिदुन जईदन। अब देखिए जईदन हालत नसब में है, ये यहाँ पर मफूल बन रहा है। तो अब यहाँ पे नोट कीजिए कि जो फाइल ने फेल परफॉर्म किया है, जो उसने मारा है, उसका इफेक्ट ट्रांजिट हुआ है जैद पर। ठीक है, अब उसका असर जैद पर गया है, यानी मारने का असर जैद पर चला गया। हामिद ने जैद को मारा, तो क्या हुआ? काम का असर मफूल पर हुआ, जबकि लाजिम में काम का असर फाइल पर था। ठीक है, अब इसको थोड़ा और देखिए। इसने बुलाया, उसने बुलाया, खालिद ने पढ़ा, और इसने खाया। अब इनको गौर करें अगर हम, तो यहाँ पर देखें कोई ना कोई सेकंड पर्सन या एक मफूल इन्वॉल्व होगा। उसने बुलाया, किसी को बुलाया? अम्मी को, भाई को, बहन को। उसने देखा, उसने कुछ तो देखा, जहाज देखा, गाड़ी देखी, घर देखा। खालिद ने पढ़ा, तो क्या पढ़ा? कोई किताब पढ़ी है, कोई फीचर पढ़ा है, कोई अखबार पढ़ा है। इसने खाया, उसने क्या खाया? कोई चीज खाई, रोटी खाई, चावल खाए, मछली खाई। तो वो जो बुलाने का, देखने का, पढ़ने का, खाने का जो फेल हुआ, वो जो फाइल ने फेल अंजाम दिया, उसका इफेक्ट ट्रांजिट हुआ एक सेकंड पर्सन पर, जिसे हम कहते हैं मफूल। और ऐसा फेल जिसका असर किसी सेकंड पर्सन पर जाएगा, उसे हम फेल मुतअद्दी कहेंगे, यानी इसमें कोई इन्वॉल्व है, मफूल इन्वॉल्व है। अब इसको हम एक छोटी सी एक ट्रिक से समझते हैं कि जब आपने किसी फेल को पहचानना, तो कैसे पहचानेंगे? तो हम उस फेल का सवाल करेंगे, यानी किसको, उस फेल का सवाल करेंगे। जैसे मैं कहूंगी जलसा, अब मैं जलसा के साथ अगर कहती हूँ वो बैठा, किसको? तो ये तो चीज ठीक नहीं लग रही। ठीक है, वो निकला, किसको? ये तो मैं जवाब नहीं यहाँ दे पा रही, किसको निकला? वो गया, किसको? यहाँ भी मैं आंसर नहीं दे पा रही। वो आया, किसको? यहाँ पर भी हम आंसर नहीं दे पा रहे, हम इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे, किसको आया? तो यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे कि अगर हम फेल के साथ, उसके तर्जमे के साथ सवाल करते हैं किसको, और जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब है ये फेले लाजिम है। जवाब मुमकिन नहीं तो फेले लाजिम। अब यहाँ देखिए, ज़राबा, उसने मारा, किसको? किसी को तो मारा है, कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है, मफूल आएगा इधर, तो ये मुताद्दी फेल होगा। इसने बुलाया, किसको? किसी को तो बुलाया, अम्मी को, अब्बू को, भाई को, तो इसका मतलब है मफूल चाहिए। उसने देखा, किसको? जहाज को, दरख्त को, किताब को, गाड़ी को, तो इसका मतलब है यहाँ भी हमें मफूल की जरूरत है। खालिद ने पढ़ा, किसको? क्या पढ़ा, यानी किसको पढ़ा? किताब को,
रिसाले को, किस चीज को? तो यहाँ भी मफूल इन्वॉल्व है, तो ये भी मुतअद्दी फेल। इसने खाया, किसको खाया, क्या चीज खाई, यानी वो खाने का असर किसी चीज पर आया ना, अफेक्ट आया। सेब खाया, आम खाया, चावल खाए, मछली खाई, तो ये इस तरह से है सारी चीजें। तो फिर जब जवाब मुमकिन हो तो फेले मुतअद्दी होगा। एक और चीज यहाँ याद रखनी है हमें, कि जब हम देख रहे होते हैं, तर्जुमा कर रहे होते हैं, तो उर्दू में हम जिस के साथ ने का आएगा वो काम कर रहा है, वो फाइल होगा, फाइल के साथ ने आएगा, ठीक है। हामिद ने, तो ये फाइल है, ठीक है। और जिसके साथ को होगा ना, वो आपका मफूल है। जैद को मारा, हामिद ने जैद को मारा। और अरबी में हम फाइल को हालत रफा से पहचानेंगे और मफूल को हम हालत नसब से पहचानते हैं। यानी हम अरबी जुमला फेलिया जब हमारे सामने आएगा, तो हम फाइल और मफूल को उनके एराब से पहचानते हैं। उर्दू की पहचान मैंने आपको बता दी है। फेल आपके सामने है जलसा। अगर मैं इसको कहती हूँ जलसा, वो बैठा, वो बैठा किसको, इसके क्या आप जवाब दे पाएंगी? मेरे साथ कोई आ सकती है स्टूडेंट, हैंड रेज कीजिए जरा। शमा आ जाइए आप, शमा खानी, आइए जी। ओह। देखिए, यस। जी। मैं आपसे कह रही हूँ जलसा, वो बैठा। अब आप सवाल करें वो बैठा किसको, आप जवाब दे पाएंगी इसका? नो। क्यों? नो मैम, यहाँ पर सवाल ये वाला बनता ही नहीं है, ओके, वो तो निकला, हम जवाब नहीं दे सकते। वो निकला किसको, कोई जवाब दे पाएंगी? नो मैम। वो गया किसको, कोई जवाब हो रहा है नो आपके मैम। पास? वो नो आया, मैम, बिल्कुल नहीं। वो आया किसको, जी मैम, इसका भी कोई जवाब नहीं बनता। इसका भी कोई जवाब नहीं बनता। अभी आप माइक पे रहिए। शादाब आप जी। आइएगा प्लीज साथ। शादाब प्लीज सेट योर माइक। शादाब बिलाल। निशात कौसर आप चेक करें अपने माइक पे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब आपको मैं आपके सामने मैं कह रही हूँ ज़ोराबा, उसने हम्म मारा किसको, हम्म आप जवाब दे सकती हैं? नहीं, उसका पता नहीं ना किसको मारा। नहीं एक मिनट। हाँ, किसको? हाँ, फलां को मारा। किसको, हाँ फलां को मारा, ठीक है। यानी इसका ओके। जवाब बन सकता है ना, आप इसको जवाब दे हाँ सकते जी। हैं ना, ठीक है। अब जी। देखिए, उसने बुलाया किसको, जवाब दे सकती हैं इसका? हाँ हाँ। किसी को तो जेड को बुलाया ना, बुलाया या हामिद को जैद, बुलाया। शाबाश। उसने देखा किसको, हाँ, जहाँ, किसको जहाज दिखा? देखा, किताब देखी, कमरा देखा, गाड़ी देखी, ठीक है ना। खालिद ने पढ़ा ठीक है। किसको, जवाब दे सकते हैं ना इसका, हम किसको पढ़ा? यस हाँ, मैम। बिल्कुल। इसने खाया, क्या पढ़ा? बिल्कुल ओके। इसने खाया, क्या खाया, किसको खाया, हाँ किसको, इसका जवाब दे सकते हैं ना आपके, क्या खाया उसने आखिर, जी जी। खाने वाली चीज बताई जा सकते हैं ना। तो यहाँ आपने हाँ देखें जी। कि जब आप किसी फेल के साथ एक सवाल लिख दें किसको, तो आपने वहां, अगर वहां जवाब मुमकिन नहीं तो वो फेले लाजिम है। जैसे मैंने कहा ना जला सा, वो बैठा किसको, तो जवाब मुमकिन नहीं है, तो ये कौन सा फेल हुआ शमा खानी? यस मैम, ये फेल लाजिम हुआ, जो कि फेल फाइल पर ही हो रहा है। हाँ जी। और अगर हम उस फेल के जवाब में किसको कहते हैं, जैसे आ, जोराबा, उसने मारा किसको, जवाब मुमकिन हो तो कौन सा फेल होगा? यस मैम, फिर वो फेल मफूल मुतअद्दी पर होगा। होगा। हाँ, मफूल फेल मुतअद्दी। मुकद्दी हो जाएगा। यस। अगर आप किसी फेल का जवाब
दे सकती हैं, तो वो हम्म फेल मुतअद्दी है। और अगर किसी फेल का जवाब मुमकिन नहीं तो वो फेल लाजिम है। बस ये दो, इतनी सी बात है। दूसरी बात ये, अब आप देखें नीचे कि अगर हम फेल लाजिम के कॉलम में देखें, वो निकला, वो गया, वो आया, तो हम बात क्या कर रहे हैं? वो, ठीक है। जब हमने इधर दूसरी तरफ फेल मुतद्दी में देखें, उसने बुलाया, उसने देखा, खालिद ने पढ़ा, इसने खाया, तो हम उस फाइल के साथ देखिए ने का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने, खालिद हम्म ने, उसने बुलाया, अम्मी को बुलाया, उसने देखा, जहाज देखा, खालिद ने पढ़ा, किताब पढ़ी। तो ये जो उसने, इस ने से भी आप याद रख सकती हैं कि जब फाइल के साथ आपको ने मिल जाए ना, तो इसका मतलब है ये फेले मुतअद्दी है, यानी उस फाइल ने किसी चीज पर काम किया है। और वो क्या चीज होती है? मफूल कहलाती है, जिस पर काम हो रहा होता है। अभी आपको ये यस बात मैम। समझ आ गई? किसी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पूछ लीजिएगा, अपने सवालात लिख लीजिएगा। ठीक है, शमा आप साथ रहिए, और निशात जी आप भी, अब अगली स्लाइड भी आप दोनों साथ में रखिए। अच्छा, अब आपके सामने मैं कुछ अफआल लेके आऊंगी, तो आपने क्या करना है? एक फेल शमा आप करें पहले, फिर अगला फेल निशात जी करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने शमा, दखला। अब ये फेल लाजिम है या मुतअद्दी? मैम ये फेल लाजिम है। दाखिल दखला है। वो दाखिल हुआ। जी। हाँ शाबाश, इसी तरह ट्रांसलेशन के साथ। चले निशात जी, अगला आप कीजिए। जाला, बनाना, लाजिम या जाला मुतअद्दी? बनाना, हम्म। ये लाजिम है उस्ताद। जाला इसमें बनाना, हाँ। किसको बनाना, किसको? तो आप बताइए। अच्छा, फिर मुताद्दी है। हाँ देखे ना, जाला, उसने बनाया। आप किसको बनाया? कोई अच्छा, किताब बनाई, कोई टॉय बनाया, कोई खान, कुछ भी हाँ जी, उसने किया, ठीक है। तो ये कौन सा फेल हुआ? हाँ जी, ये फिर मुताद्दी। शाबाश। क्षमा देखिए, अकला, खाना। यस मैम। अकला उसने खाया, तो ये हम्म, फेल मुताद्दी है कि क्या खाया। हाँ, और देखिए आपकी ट्रांसलेशन में आ रहा है उसने। जाला यस उसने मैम। बनाया, अकला जी। उसने खाया। बात समझ जी। रही हैं आप मेरी अब? चले यस निशाद मैम। जी देखिए, खराजा, निकलना, इसका तर्जुमा खरजा, लिख लें। खरजा निकलना, वह निकला। वो निकला। अब फेले लाजिम है या मुतअद्दी? लाजिम उस्ताद। शाबाश, क्योंकि निकलने का असर किस पर हुआ है? फाइल पे। फाइल पर, एग्जैक्टली exactly। चले शमा देखिए अगला, ज़ाहिका, हंसना। दाहिका। हाँ। यस मैम। दाहिका वो हंसा, तो हम्म। मैम ये फेल लाजिम होगा। शाबाश। निशाद जी देखिए, कताबा, लिखना। कतबा लिखना, उसने लिखा, हम्म। तो ये फिर मुताद्दी होगा। शाबाश, क्या? बिल्कुल। हम्म देखिए शमा। ज़हाबा वो गया, हम्म। ये फेल लाजिम होगा क्योंकि वो खुद गया। शाबाश। और आप आखिरी फेल देखिए, निशाद जी। हम्म क़रअ, हम्म। पढ़ना, उसने हम्म। पढ़ा, उसने पढ़ा, कौन सा तो ये फेल है? फिर मुताद्दी, उसने पढ़ा। चलो, अब आप दोनों अपना मुझे रिव्यू दें कि आप दोनों को इस समझ आई, तो इसका मतलब है सबको आ गई। हाँ जी, यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई उस्ताद। समझ आ गई, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हाँ, बहुत अच्छे से जी ये जी। आपने चीजें, समझाया सबसे। जी। ये चीजें ना हम प्रैक्टिस से इंशाल्लाह सीखते जाएंगे, ठीक है। यस। इंशाल्लाह। इन चीजों से नहीं घबराना। मैं आपसे ये नहीं बार बार पूछूंगी ये फेल लाजिम है या मुतद्दी। एक कॉन्सेप्ट देना था, वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे। आप लोग म्यूट कर लें आगे, फिर मैं देखती हूँ कि हमने किस तरह से इसको लेक्चर को लेकर, ठीक है। ओके अच्छा, मैम। अब जुमला फेलिया की पहले आप तरतीब देखें कि अरबी में कैसे जुमला फेलिया आपको मिलता है। फेल, फाइल और मफूल, ठीक है। अब जुमला फेलिया का उर्दू तर्जुमा आप कैसे करेंगी? तो आप क्या करेंगी? जैसे पहले, सबसे पहले फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा, और फिर फेल। यानी फाइल ने किस पर काम किया और क्या काम किया, ठीक है। अरबी में फेल पहले आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल। उर्दू में फाइल सबसे पहले आएगा, यानी जो काम कर रहा है, फिर हमने बताना है अगर उसका मफूल है, उस जुमला फेलिया में उस फेल का मफूल मौजूद है, तो हम कहेंगे कि पहले फाइल ने जो काम करने वाला है,
کس پر کام کیا اور کیا کام کیا، ایسے یاد رکھ لیجیے گا، فائل، مفعول اور فعل، یہ اردو کی ترتیب ہے جب آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ شہلا جمال آپ آئیے پلیز، آ جائیے۔ جی میم، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہلا۔ اچھا شہلا، پہلے اردو ترجمہ آ رہا ہے، اس میں آپ مجھے فائل اور فعل، فائل اور مفعول بتائیں گے۔ سب سے پہلے جملہ پڑھیے۔ خالد نے ناصر کی ہوں، مدد کی۔ ٹھیک ہے۔ تو خالد نے، خالد فاعل ہو گیا ہوں اور مدد کرنا فعل ہو گیا۔ ہوں جی، اور کیا بتائیں گے؟ اور کس کی مدد کی؟ ناصر کی مدد کی۔ ناصر کی اچھا تو مدد ناصر مفعول ہو گیا، ناصر کی۔ مفعول ہو گیا۔ ہاں جی، ناصر مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس روٹ لیٹر جی ہے مدد کرنے کے لیے، نون صاد را، وزن فعلا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، خالد آپ کا فاعل ظاہر ہے، تو گردان کا کون سا صیغہ لے کر آئیں گی؟ پہلا، شاباش، تو بنائیے پہلا صیغہ۔ فعل ناصر حامدن، فعلا نہیں، نہیں دوبارہ۔ سوری، اور نصر ہے نا، ہاں، ہاں، نصر خالد ناصرن۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ نصرہ خالد ناصرن۔ اب دیکھیے، نصرہ فعل تھا، خالد حالت رفع میں کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، اور ناصرن کون سی حالت میں ہے؟ مفعول ہو گیا، ہاں، یہ نسبی حالت میں ہے۔ نصرت میں ہے، ٹھیک، ایک اور کیجیے آپ۔ اس معلم نے خالد کو سمجھایا، ہوں، اس معلم نے سمجھانا، شین را۔ خالد کو اب مجھے بتائیے فائل کیا ہے؟ معلم فاعل ہے شاباش، اور اور خالد مفعول ہے، اور سمجھایا، یہ سمجھانا فعل ہو گیا۔ گڈ، تو آپ پڑھیے۔ شرح نہیں، شرح حاضل معلم خالدن۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں مجھے بتائے، شارحہ گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ کیا میم، پھر سے سوال تھوڑا، جی، سوال نہیں سمجھ سکے۔ اچھا، شارحہ گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ پہلا، پہلا شاباش۔ حاضل معلم، اعرابی حالت کیا ہے؟ پیش ہے، مشار الیہ کی، ہاں، رفع ہے، یعنی کہ فاعل، تو کیا بنے رفع گا حالت، یہ؟ یہ فاعل بنے گا، شاباش۔ اور خالدن اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مفعول، نصب، تو یہ کیا مفعول۔ مفعول بن گیا، گڈ۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو بات؟ جی میم۔ الحمدللہ۔ زوبیہ آپ اچھا، آئیے، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر۔ زوبیہ سلیم آ جائیے۔ سائمہ سفیان آپ آئیے۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سائمہ آگے دیکھیے اب آپ۔ میں نے خالد کو سمجھایا، پہلے بات ہو رہی تھی اس معلم نے خالد کو سمجھایا، اب میں کہہ رہی ہوں میں نے خالد کو سمجھایا، تو فائل کیا ہے؟ میں۔ کون جی، سا صیغہ ہے گردان کا؟ سائمہ آپ کی آواز۔ چوتھا، جی جی، جی میں بولیے۔ نہیں، دیکھیں میں، انا، کون سا صیغہ بنے گا؟ اللہ، واحد متکلم کا 13واں صیغہ، جی ٹھیک جی ہے۔ جی جی، تو اب اس میں 13واں میں نے کیا ہو گیا، فائل یا مفعول؟ میں نے خالد کو سمجھایا، تو ہوں، میں جو یہ میں فائل ہو گیا نا وجہ۔ میں فائل ہو گیا۔ اب جی، سمجھایا کیا ہے، فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ہے، جی ہاں، جی، اور کس کو اور سمجھایا؟ خالد کو تو یہ مفعول ہو گیا۔ شاباش۔ اب سمجھانے کے لیے آپ کے پاس فعل جو روٹ لیٹر آئے ہیں وہ ہیں شین، را، شرح، اور وہی فعلا کا وزن ہے۔ تو اب بتائیے کہ جی
अना के लिए कैसे बनाएंगी शीन रा हासिल आप सीगा? तो शरहतु, शाबाश। आगे मैंने समझाया आपको। शरहतु, जी हम्म। मैंने समझाया खालिद को खालिदन। हाँ जी, वेरी गुड। जी, शाबाश। एक और कीजिए। अल्लाह ने इब्राहिम की मदद की। आपको क्लिक करिए। अल्लाह। अल्लाह ये फेल हो गया, हम्म। फाइल हो गया अल्लाह, अल्लाह फाइल हो गया अल्लाह। ओके, अल्लाह मदद ने करना। मदद करना ये फेल हो गया, और इब्राहिम की ये मफूल हो गया। ओके, नून स्वादरा फाला। आप बनाइए। हाँ, फाइल जाहिर आ नसर, जी जी, फाइल नसरल्लाहु इब्राहिमा। इब्राहिम। देखिए, ठीक है, लफ्ज़ जलाला जी, हालत रफा में है, इब्राहिम इसका मफूल। मफूल, लास्ट जी। कीजिए। फातिमा ने हामिद को मारा। फाइल क्या है? फाइल फातिमा हो गई, ओके, और मफूल। हामिद मफूल हो गया, और मारना हो गया फेल। वाद राबा फाला का वजन है, बनाइए। फाइल जाहिरा तो कौन सा सिगा लाएंगी? फातिमा मुन्नस है। जरा जी, जरबत, जी, पढ़िए। जरबत जरबत फातिमतु हामिदन। हामिदन। आप जब मफूल जो है मौरिफ बिलाम इसम या नकिरा इसम होगा तो भी आ जाइए। बाकी लोग भी आए। वो भी आप चेक करें माइक। अच्छा जी, चलो। देखिए, आपको पहले उर्दू तर्जुमा दूंगी मैं, उर्दू का जुमला आएगा, फिर आपने मुझे बताना है फाइल, फेल और मफूल। पढ़िए। मुसलमानों ने जुल्म करने वालों को कत्ल किया। अब फाइल कौन है? इसमें जो है मुसलमानों जो है वो फाइल है, ठीक है। और फेल? और जो फेल जो है कत्ल है, और जुल्म करने वाले जो है वो मफूल है। हाँ जी, ठीक है। जी, तो आपके पास रूट लेटर है काफ ताला। ताला, तो वजन है फाला का वजन। तो अब आपके पास मुझे बताइए, फाइल जाहिर आ रहा है तो कौन सा सीगा लेकर आएंगे गर्दान का? फाइल जाहिर आ रहा है तो इसमें जो है हम चौथा लेकर, नहीं, पहला। पहला। शाबाश। तो बनाइए कौफ तालान से पहला सीगा फाला के वजन पर। जी, कौताला। कौताला। अब फाइल लगाएं इसके आगे। जी, कौताला मुस्लिमान या मुस्लिमोना। मुसलमानों जमा। पढ़िए अब। देखिए आप। जी, शो मुस्लिमोना। कतल। कतल पढ़िए। मुस्लिमीना। हम्म। अब मुझे ये बताइए, अल मुस्लिमूना जमा है तो ये तो ऊना आ रहा है, नसब आ रही है आखिर में, क्यों? नस्ब आ रही है इसलिए कि हम्म, ये नहीं मुझे पता देखें, है। ऊना की साउंड हालत रफा की अलामत है। मैंने आपको कंफ्यूज करना चाहा लेकिन और आप हो गई फौरन। ऊना की जी, साउंड हालत रफा की है, ठीक है। हाँ जी जी। ये क्या हुआ नस्ब आपका? हाँ। होना है और होना है, ठीक हाँ, हो। अब ये आपका फाइल है। तो जी, ज़ालिमीना ये क्या है? ज़ालिमीना जो है वो है ना, इसमें जो बना है हमारा मफूल। मफूल। तो हाँ, ये कौन सी अरबी हालत है इसकी? इसकी जो है इधर आ रही है वो नस्ब। और अगर मैं आपसे कहूँ ज़ालिमीना की रफा की हालत कौन सी होगी? जी, जालिमोना। हाँ जी, ठीक है। तो ये ज़ालिमूना से ज़ालिमीना हालत नसब में है, ठीक है। कतलल ठीक है। मुस्लिमून ज़ालिमीना। अगला देखिए। मैं कंफ्यूज करूँ? आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये नहीं सोचा कि मिस कैसे मुझे पूछ रही है। तो आपने ऊना से याद रखना था। खादिम ने दरवाजा खोला। अब फाइल क्या है? जी हाँ, एक मिनट, वो ना कॉल आ रही थी, एक सेकंड में जरा हम्म, माइक दोबारा बंद कर। मैं किसी और को बुला लेती हूँ। खादिम ने दरवाजा खोला। अच्छा, ठीक है। फाइल क्या है? इसमें खादिम फाइल है, और खोला जो है फेल है, और दरवाजा मफूल है। ठीक है, खोलना। जी, मेरी खोलना आवाज आपके दो डिवाइस, फातहा। एक को म्यूट करें, ठीक है। फातहा। फातहा। और ये आपको वजन मिलेगा
फाला के वजन पर। खादिम फाइल जाहिर है, तो कौन सा सीगा लेकर आएंगी? इसमें भी पहला ही आएगा। चलें, और लाइए फातहा से। जी, फातहा खादिम को क्या खादिम में बोलेंगे? जी, खादिम ही बोलेंगे। फातहा खादिमु पढ़िए। अल खादिमुल बाबा। फतहल खादिमुल बाबा। अब खादिम किस अरबी हालत में? जी, ये रफा की हालत में है। क्या बनेगा? जी, क्या बनेगा जुमले में ये? जुमले में ये वो है ना, फाइल। और अल बाबा किस अरबी हालत में है? जी, ये नसब में है। और ये क्या है यहाँ पर? ये मफूल, जो वो बारकल मफूल। ठीक है। ओके, हादिया आप आ जाए। जी हादिया, देखिए, तुम एक मुजक्कर ने दरवाजा खोला। हादिया, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, माइक को ऊपर में। शमा आप आ जाइए। यस मैम। जी कीजिए, तुम एक मुजक्कर ने दरवाजा खोला। अब इसमें आपको फाइल क्या है मुझे बताइए सबसे पहले। फाइल इसमें तुम है, और दरवाजा खोला, ये दरवाजा खोला ये हो जाएगा फेल। दरवाजा खोला फेल। गौर करें। जी, खोला खोला फेल, और हम्म। दरवाजा मफऊल। शाबाश। सॉरी। कोई बात नहीं, जी, हो जाता है। चलें, अब आप मुझे बताएं कि फाइल आपका जाहिर है क्या है? जमीर। यस मैम। ये जाहिर नहीं है मैम, ये इसमें मुस्ततिर जमीर होगी इस फेल में। कौन सा सीगा बनाएंगे फिर? तुम में एक मुजक्कर। यस मैम, फिर मैं बनाऊंगी फतहत फतहतल बाबा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें, आगे के करें। मुसलमानों ने गाय ज़िबह की। मुसलमानों यहाँ पर फाइल है, हम्म। गाय यहाँ पर मफऊल है, और जिबा की फेल है। आप मुझे बताएं, इसके आपको मैं रूट लेटर दे रही हूँ। जाल बा हा, फाला के वजन पर कीजिए। मुसलमानों, आपका फाइल जाहिर आ रहा है ना, तो कौन सा लेकर आएंगे? यस मैम, पहला लेकर आऊंगी ज़बहल मुस्लिमूना, और ज़हबल मुस्लिमूनल बकरता। शाबाश। ठीक है। अच्छा, यस। अल मुस्लिमूना की अरबी हालत मुझे आप बताएं। अल मुस्लिमूना की एराबी हालत मरफू है क्योंकि ये फाइल है। शाबाश। और अल बकरता किस हालत में है? अल बकरता ये मंसूब है, तो ये मफऊल है। आगे कीजिए, औरतों ने औरतों को सुना। आप फाइल और फेल और फिर मफूल बताएं मुझे। औरतों यहाँ पर फाइल है, दूसरी यहाँ पर जो औरतों आ रही है ये मफऊल है, और सुना ये फेल है। शाबाश। तो सुनने के लिए आपके पास रूट लेटर आता है सीन मीम आइन से। आपके पास यस वजन। मैम। मैम यहाँ पर होगा सुना, तो फिर हम्म, समी सॉरी देखें समी इतनी। हम्म। आप। यस, समी इतनी निसा। शाबाश। आप मुझे फाइल और मफूल बताएं कौन कौन से। फाइल इसमें अन्निसाउ है क्योंकि मरफू है, अन्निसा इसमें मंसूब है, तो ये मफऊल है। शाबाश, एक्सीलेंट। आगे कहते हैं, आप भी साफ करते हैं। अब मुरक्कब तौसीफी मफूल बनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यस हामिद मैम। नया सबक याद किया, वही पैटर्न है, बताती से। हामिद यहाँ पर फाइल है, नया सबक ये मुरक्कब तौसीफी होकर ये हो जाएगा मफऊल, याद करना यहाँ पर हो जाएगा फेल। शाबाश। रूट लेटर है आपके पास हा फा हुआ, वजन है फाइला। अब आपके पास हामिद फाइल जाहिर है ना, तो कौन सा सीगा लाएंगी? मुजक्कर। यस मैम, मैं फर्स्ट सीगा लाऊंगी। गुड, बनाइए। हाफिजा, हामिदुन, और
हामिदुन नित। हाँ, हामिदुन अदरसल जदीदा। हाँ, इधर हम वो एक छोटी सी नून लेकर आते हैं ना नीचे पढ़ने के लिए, हफीजा। यस, हामिदुन नित दरअसल जदीद। हामिदुन दरसल जदीदा। जी, हामिदुन नित दरअसल जदीदा। यस अब मैम। हाँ, फिर हामिद। यहाँ जी, मैम, फिर यहाँ पर हम लोग तनवीन नहीं पढ़ेंगे हामिद की, फिर हम इसको एक पेश के साथ पढ़ेंगे और फिर नून को दाल के साथ कन्वर्ट करेंगे। हामिदुन नित दरअसल। ठीक है, जी। सिंगल कर लेना उसको। जी, अब यस मैम। हामिदुन आपका क्या हो गया? अब तो हम सिंगल पढ़ रहे हैं। हामिदुन यहाँ पर फाइल हो गया। हम्म, और अदरसल जदीदा, ये अदरसा हम देख रहे हैं ये मंसूब है, तो फिर ये मफऊल बन जाएगा, इसका मुरक्कब तौसीफी होकर। शाबाश। अब मुझे ये बताएं कि ये मुरक्कब तौसीफी आपने कहा मंसूब है, तो आपने इसके किस पार्ट से पहचाना है इसका इराब? यस मैम, क्योंकि इसका जो लीडर है वो मौसूफ है, तो मौसूफ अदरसा से पहचाना। शाबाश, गुड गर्ल। अच्छा जी। और अच्छा, आगे देखिए तो फातिमा ने छोटे लड़के को मारा। फातिमा यहाँ पर फाइल है, छोटा लड़का यहाँ पर मफऊल है, और मारना यहाँ पर फेल है। वात रा बा रूट लेटर, फाला का वजन है। अब बनाइए। यस मैम, यहाँ पर दरब दरब तिल। तिल नहीं, फातिमा किसने की, ये सोचिए। फातिमा ने, हम्म, तो मैम यहाँ पर छोटे लड़के को मारा ना, तो दरबत फातिमातुल वलद सगीरा। ओके। ठीक है। आप मुझे बताइए यस कौन मैम। सा सीगा ये गर्दान का आया दरावत? दरबत ये आयत चौथा सीगा। शाबाश। क्यों लेकर आए हैं हम चौथा सीगा, ये बता दीजिए क्लास को। यस मैम, क्योंकि यहाँ पर हम फाइल देख रहे हैं, जाहिर है, और ये मुअन्नस है फातिमा। शाबाश। अब अल वलद सगीरा ये क्या है? अल वलद सगीरा, ये यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और अब हम इसका एराब मंसूब इसके मौसूफ से देखेंगे, अल वलदा से। शाबाश। तो ये मौसूफ है, तो फिर ये मफूल है। मंसूब है तो इसलिए मुकुल है। बारकल्लाहु फीकी शमा, मेरे साथ ही रहिएगा। जज़ाकल्लाह। मैं आपको। ओके मैम। ओके राफिया अली, आप आ जाइए। आइए, देखिए अब आपके साथ हम मुरक्कब। जुमला पढ़िए। हामिद ने खालिद के बेटे को मारा। फाइल क्या है, जल्दी से बता दीजिए। इसमें फाइल होगा हामिद। हाँ, और फाइल होगा हामिद। फेल। खालिद के बेटा, खालिद का बेटा मफूल, और मारा फेल। जी, मारना फेल। ठीक है, हम मजदूर। मार जी। ओके। ज्वाद रा बा रूट लेटर है, फाला का वजन है। फाइल आपके पास जाहिर है, तो कौन सा सीगा लाएंगी राफिया? पहला सीगा आएगा दरबा। हम्म। और खालिद के बेटे ये क्या है? ये मुरक्कब तौसीफी है। खालिद के बेटे। मुरक्कब इजाफी है। हाँ जी। आप मुझे बताएं कैसे बनाते हैं मुरक्कब इजाफी? अ, इसमें पहले आएगा पहले आएगा वलदो अल वलद, वलदो खालिद, हाँ। वलदो खालिदन, हाँ जी, वलदु खालिदिन। ठीक है। वलदो खालिदिन, जी हाँ। तो फिर अब वलदु खालिदिन बना, तो अब हमने उसे यहाँ पर क्या क्या स्टेटस देना है असल में? यहाँ मफूल। पे उसको मफूल का स्टेटस देना है। तो फिर हम एराब चेंज करेंगे ना, तो क्या लेकर आएंगे? जी, खालिदन। हम्म, वलदा खालिदिन। मुजाफ का एराब वलद, चेंज करेंगी राफिया। आप जी जी, मुजाफ ला को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है? तो वलदा खालिदिन, ठीक है। वलदा चलिए, खालिदिन। अब पूरा पढ़ेंगे, आपके सामने है। दरबा हामिदुन वलदा खालिदिन। जी, अब आपको बात समझ आ गई। पहले आप सिंपल जी बना लीजिएगा, ठीक है। ये हम, जी सॉरी ये थोड़ा इधर हो गया। हामिदुन आपका फाइल है और वलदा खालिदिन मफूल है। सबसे पहले आपके सामने अगर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन आ जाती है ना, तो आप उसको साइड पे लिखें। पहले जैसे हमने बनाया ना वलदु खालिदिन, तो फिर अब हमने कि जी उसे मफूल का स्टेटस देना है जुमले इस फेलिया में, तो हमने उसका जी। इराब चेंज कर दिया। तो मंसूब कर दिया, क्योंकि हमें मफूल हालत नसब में चाहिए, तो हमने मतलब कहा मैं ना जी खालिदिन। और मुजाफ इलैह को आप नहीं छेड़ेंगी, ठीक है। अब अगला एक और आप, जी। उसामा और उसाम, अपना सबक सुनाया। फाइल बताएं जल्दी से।
इसमें इसमें फाइल है उसामा, मफूल है जैद ने सबक, याद उसामा किया और होगा रुके, फेल। उसामा और जैद ने, ये दोनों फाइल हैं, अपना जी, सबक याद किया। अब बताइए, उसामा। उसामा और जैद जो हुए वो फाइल हुए, अपना सबक मफूल हुआ, और याद करना जो हुआ वो फेल हुआ। एक्सीलेंट, अब रूट लेटर आ गए आपके सामने। अब आपके पास फाइल जाहिर है, तो कौन सा सीगा लगाएंगी? इसमें पहला सीगा आएगा। शाबाश। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपके पास फाइल में तो दो नाम आ रहे हैं, सीगा आप पहला लगा रही हैं, कोई रीजन है तो बताएं हमें। आप कहेंगी कि फाइल जाहिर हो तो सीगा नंबर एक आएगा, अदद चाहे वाहिद मुसन्ना या जमा हो, ठीक है? जी जी, ठीक है, अब ये ठीक। पढ़िए जी, जुमला। हफिजा उसामतु व जैदुन दरसहुमा। ठीक है, दरसा हुमा, ये जी, कौन सा मुरक्कब बन गया? हम्म ये दरसहुमा जो हुआ वो मुरक्कब इजाफी ना, अपना सबक। मुरक्कब। ठीक जी है, हाँ। दरअसल था, जी एराब हल्का हुआ ना, दरअसा। और जी, आगे जमीर जो है वो मुजाफ हुमा, बन रही है, हालत जर। मुसन्ना की जमीन। जी, क्योंकि पीछे दो की बात हो रही है, दो लोगों ने पास। जी, तुम एक मुजक्कर ने जैद का कलम चुराया। अब तुम एक मुजक्कर क्या है? तुम एक मुजक्कर जो वो फाइल है, हम्म जैद का कलम। जैद का कलम जो है मफऊल, और हम्म चुराया जो है वो फेल। अ, अंता इसमें आएगा। नहीं, चुराना चुराने को क्या, मिस चुराने को क्या कहते? सदकता कलमा जैदिन। आपकी आवाज स्किप हो गई। सदकता कलमा जैदिन। इसमें आपने कहा अंता, इसमें जी, जी हाँ अंता। तो हम इसको सीखा नंबर की आवाज से समझेंगे अंता है। हाँ जी, ता की आवाज से, गुड। तो कलमा जईदिन, इसकी अरबी हालत क्या है? हम्म तो इसकी एराबी हालत मंसूब होगी। जी, अब मुजाफ से हमने इसके अराब पहचाना, ठीक है। बारकल्लाहु जी, फीक। अ, समीरा जी आप आ जाइए, समीरा नबी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ओके, देखिए समीरा जी, इसमें मुझे पढ़िए, उस उस्ताद ने ये सबक समझाया। आप मुझे बताइए इसमें फाइल क्या है, कौन सबक समझा रहा है? उस उस्ताद फाइल है, हम्म ये सबक मफूल है और समझाया फेल है। वेरी गुड। चलें, अब मादा है आपके सामने, शीन राहा, वजन है फाला। श, जी कौन सा? शरह हम्म क्या शरहल उस्ताजु देखें, उस उस्ताद, जालिकल उस्ताजु, ठीक है। जालिकल उस्ताजु हाजल हाजल दरसा। ठीक है, अब देखिए, जी, जालिकल उस्ताजु कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबे इशारी। इशारी, हाँ जालिका की वजह से मुरक्कबे इशारी। और इसकी अराबी हालत क्या है? इसकी मरफू है, किससे उस्ताजू की। मुरक्कब इशारी का आप किससे पहचानते हैं हम? मुशार मरफू से, से मुशारुन लै से। हाजत दरसा, ये क्या है? इसकी अराबी हालत, हाजत दरस, इसकी अरबी हालत नस्ब है। ये क्या बन रहा है यहाँ? ये हाजत दरसा, ये सबक। जुमले में क्या स्टेटस आ रहा है इसका? इसका आ रहा है मफूल। शाबाश, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहे ना। मुअल्लिम ने उन तालिबों की मदद की। मुअल्लिम क्या है? मुअल्लिम फाइल है, उन तालिब इल्म मफूल है, मदद की फेल है। शाबाश। और मदद है नसर,
फाला के वजन पे, हाँ भाई। और नसरा, और मुअल्लिम, क्योंकि ये जाहिर है फाइल, इसलिए वो पहला आएगा इसका सीगा। नसरा हाजल मुअल्लिमु हाँ उलाइकत तुलाबु, उन तालिब इल्मों की। हाँ, मैंने असल में पहले जुमला कुछ और लिखा था, तो हम सिर्फ इसको सिंपल लिखते हैं, नसरल मुअल्लिमु उलाइकत तुल्लाबा। ठीक है, जी ठीक है। तो मुअल्लिमु क्या बना? मुअल्लिमु फाइल, तालिब इल्मु मफूल, और मदद की फेल। अरबी में इधर अरबी जुमले की तरफ आए। मुअल्लिमु हाँ जी। उलाइकत तुल्लाब मुअ- मफूल। जी हाँ जी। तो अब आपने, हाँ जी, हाजल मुअल्लिमु फाइल। जी ठीक है, उलाइक तुल्लाबु में अतुल्लाबा मुशारुन लह है, इसके अराब से हमने पहचाना कि ये मफूल बन रहा है मफूल में। चलें जी, म्यूट कर जी। लें। मफूल, आज हमने क्या सीखा? आज हमने मफूल की तारीफ सीखी, फेले लाजिम और फेले मुतद्दी की पहचान सीखी और उनकी डेफिनेशंस देखी। और आज हमने मफूल जाहिर की प्रैक्टिस की है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।